Hello, good afternoon, everybody. Hello, my dear letter writing learners. There was a time when you used to get letter from your relatives, from some offices. Now the time has changed. The writing of letter, style, system, technology have completely changed during this tenure of the time. Now, still, there is big importance of writing a good letter. And I tell you in the beginning that this video is going to be little bit lengthy as the requirement of the topic. So I am going to cover 4 or 5 videos on letter writing. Why? You will ask question. Because you get two types of letter in your examination. The first one is called application for job, or you can say cover letter, or you can say letter of applications. That is almost one type of application, but it is in the form of letter writing. Still, students feel little bit tough time when they are asked to write a good letter. I used to see many students, irrespective of their class, college, or university, they are still not able to write a good letter. There can be so many reasons for that. As all of you know, that you might not have confronted with a good teacher who could tell you the exact or right technique to write a letter. So let us start the music. And my dear students, my dear letter writing learners, those who really want to learn letter writing, you will have to watch the full video, because in letter writing, formal letter is the base, or informal letters, which we will also discuss in a little while. You always get two types of letter to the editor, and one more is application for job with resume or CV or curriculum vitae, that we will discuss in the coming lectures. So instead of wasting more time in introduction, let us go to our laptop and start learning the process and start learning. नीम डालने सीखें, पत्थर की नीम डालने सीखें, और उसको हम जो बेस है, जैसे घरों में बेस बनाते हैं कंक्रीट से, काफ़ी हैवी और स्टील का, ताकि your house may live long. In the same way, you have to write good letter. And for writing a good letter, you definitely require to be attentive, and you have to give more time. So this is MS Yadav, your principal sir. You are watching your own YouTube channel, Principal Sir. One more thing before I go to my laptop, I just want to reveal and want to ask you students, you learners,
that do you really want to me come live on YouTube? I am thinking and I am taking views from my students that are they able to get up early in the morning, because the schedule of the live session will be in the morning, maybe at 6 o'clock in the morning. So you have to get up at 5 o'clock and you have to be with your phone, with your laptop, or with your desktop. There you can interact, there you can ask questions directly, there you can chat with me. I feel it is fine, but for my students, although it may create some headache or problem for me, but I am least bothered. I want my students, I want my learners to be on the top. So if they will really want, I will try to start a new series in the morning of live streaming on your channel, Principal Sir. So let us first thing, formal letter, as you are looking in the title. Formal letter writing in English. Formal letter format, as the name suggests, as you can see, the name suggests. What does the name suggest? It is formal. It is means it must have some format. कोई भी फॉर्मल लेटर है, इसका फॉर्मेट होता है। कि बच्चों ये बात ध्यान में रखिए, जिस भी चीज का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, दैट इज ऑलवेज फॉर्मल. So formal letter elements are main points to be learned, to be understood. So before going, the next thing is how to write. How? You will get some major points. How to write. How to write a formal letter. Now you'll ask, sir, why you are doing formal letter? Why formal letter? फॉर्मल लेटर से क्यों शुरुआत की हमने? यस, यू आर राइट. हैव यू एवर थॉट व्हाई डिड आई स्टार्ट teaching? The first lecture on letter writing is formal letter writing. There is a reason. There is a reason behind this. And what is the reason? Because letter to the editor, which is in your syllabus, and cover letter. कवर लेटर, इसको आप कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब, आप इसको कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब, which is very important for every student who are going to search for a good job.
अगर कोई भी अच्छी जॉब करना चाहता है तो उसको लेटर लिखना जरूरी है। तो we were doing main points of, so for getting job you have to write a letter. आपको लेटर लिखना पड़ेगा, बट हाउ, यू विल आस्क, हाउ कैन बी? We will discuss each and every point. And one more thing, as the thumbnail, or you can say as the image is showing, formal letter writing in English, formal letter, how to write letter in English, plus फॉर्मल लेटर कैसे लिखें हम बताएंगे आपको। आपको एक और चीज़ बता दूं, आज से बहुत से बरस पहले जब एजुशेट हरियाणा में शुरू हुआ था, देन आई डिलीवर्ड, तब मैंने लेक्चर डिलीवर किए थे, तब मैंने लाइव लेक्चर मेरे लेटर राइटिंग पे थे। And what is the result? Result you will see in a few minutes. Once you complete this series of letter writing, it's going to be maybe 4 or 5 lectures. I am sure you will get 100% marks in it. That is going to be of 5 marks. And whatever you want, suppose you are watching video today, you can download PDF of this lecture from your own website, read, learn, excel.com. तो आप वहां से लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो लेट अस टेक नेक्स्ट स्लाइड. What does it say? Now the first thing, you must know what is the definition. Definition of formal letter. You must know, as the word suggests, formal is letter is a piece of communications, piece of communication. किसी के पास आप लेटर लिखते हैं, अगर वो फॉर्मल है तो एक मैसेज कन्वे करता है। हाउ? मैसेज तो फोन से भी कर सकते हैं, मैसेज तो इनफॉर्मल लेटर से भी कर सकते हैं, मैसेज तो चैट से भी कर सकते हैं। नो, सपोज यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ए जॉब, यू कैन नॉट चैट, यू कैन नॉट कॉल, इंस्टेड you will have to a set of structure, set of structure. स्ट्रक्चर होता है, ये आपका घर है, इस घर के अंदर रूम्स हैं, ये रूम्स हैं, ये लॉबी है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, यह विंडो है, यहाँ विंडो है, यहाँ विंडो है। ये मतलब नहीं कि आप यहाँ दूसरे की दीवार यहाँ विंडो लगा देंगे, यहाँ विंडो लगा देंगे। सेम इज द वे ऑफ राइटिंग ए फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर
is formal in tone. Formal in tone. Language, structure, पार्ट्स। इसके पार्ट्स होते हैं 7 से 8, वो हम अगली स्लाइड्स पे आपको बताएंगे। इट इज टिपिकली यूज्ड, कहाँ यूज होती है? ऑफिशियल पर्पज के लिए। ये ऑफिशियल पर्पज, हम किसी अपने ऑफिसर को, अपने डिपार्टमेंट हेड को, अपने डीएससी को, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, डीओ को, डीसी को, एसपी को और सैनिटरी ऑफिसर को और कंप्लेंट ऑफ वॉशिंग मशीन, कोर्सेज, ये सभी जो है ना आप फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही लिखते हैं। आगे आगे जैसे हम जाएंगे सॉरी, आपको ये सारी बातें हम जो ना धीरे धीरे बताते जाएंगे। इसकी अपनी एक कन्वेंशंस होती हैं, यानी एक रूल होता है, हर चीज का रूल फॉलो, रूल आपने फॉलो करना पड़ेगा। अगला, ये इंडिविजुअल्स को भी कर सकते हैं, अथॉरिटीज को भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कर सकते हैं। और इसमें एक रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, मैं बताया था ना, टोन, टोन, ये रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। जैसे रिस्पेक्टेड सर, थैंक यू वेरी मच सर, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए किसी को जॉब लेटर जब आप लिखेंगे तो उसमें ये टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल वे में होनी चाहिए। कॉज टॉपिक सच एज जॉब्स, जॉब में अप्लाई करना है, बिजनेस का कोई कॉरस्पॉन्डेंस करना है, कोई कंपनी का काम है, कोई कंप्लेंट करनी है किसी ऑफिसर को, किसी कंपनी को मशीन खराब होगी, कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, आपकी कार खराब हो गई, आपकी वो गारंटी में थी, वारंटी में थी, तो आप उसकी कंप्लेंट करते हैं। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसकी भी आप जो है इस प्रकार कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन नेक्स्ट स्लाइड। Key characteristics. Key characteristics means key points. Means main points of formal letter. अब आप कहेंगे सर आप फॉर्मल लेटर भी इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर लर्नर्स ऑफ लेटर राइटिंग और राइटिंग स्किल्स, फॉर्मल लेटर is the base and it is going to be used in all letter except एक को छोड़, that is informal। as जैसे हमने इनफॉर्मल इनविटेशन किया था तो वहाँ आपने देखा होगा कि अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, तो ये सारी बातें जो ना आप वहाँ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड, जैसे इसमें मेन क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्लियर सेक्शन होने चाहिए, उसके अलग अलग हिस्से होने चाहिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। 7 कम से कम, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू मैनेज द थिंग्स, हाउ यू राइट ए लेटर। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेटर राइटिंग मैं बच्चों को एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं हमेशा ही, मोस्ट सिंपल वे, जिससे कि वो हमेशा, अगर वो पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा, स्टैंडर्ड पैटर्न है उसका, एक तरीका है लिखने का, एक बार वो आपकी निगाह में आ जाए या आपकी नजरों में चढ़ जाए, 5 नंबर पक्के हैं। और बेटे, बच्चों मेरे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर से तो काम थोड़ी चल जाएगा। लाइफ हमेशा ही लेटर लिखना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है हमेशा। क्यों सर? चिट्ठियां तो पहले जाती थी, आजकल तो चिट्ठी आती नहीं। सो व्हाट, चिट्ठियां नहीं आती तो सो व्हाट, ईमेल है, मेल करना है, वेबसाइट पे लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, ये क्या है? ये सभी लेटर हैं, ये तो आपने लिखने पड़ेंगे। आप कहीं भी जॉब करेंगे, आप सपोज यू आर डूइंग सम जॉब, मान लो आपने अच्छा लेटर लिख दिया जॉब का और आपने जॉब मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स, देन यू बिकम ए गुड ऑफिसर। आई एक्सपेक्ट, भगवान करे आप बहुत आगे जाएं, तो लेटर तो बेटा फिर भी लिखना पड़ेगा। लेटर लिखना सीखिए। आओ, कैसे फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जैसे टाइटल में आपने देखा था ना, हमने अभी आपको टाइटल दिखाया था, ये देखो, ये फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, ये बच्चे पूछते हैं, ये बच्चे सर्च करते हैं गूगल पे, ये बच्चे गूगल पे गूगल पे सर्च करते हैं। कौन होते हैं ये बच्चे? गूगल सर्च में ये कीवर्ड आया, फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, मीन्स हो सकता है उनको ये नहीं मालूम हो हाउ, कैसे का मतलब होता है, कैसे का मतलब है हाउ, हाउ है कैसे लिखा जाता है। मान लो हाउ ध्यान ना आया तो उन्होंने सीधा लिख दिया कैसे। बच्चे बहुत पूछते हैं ऐसे सवाल। तो ये इसकी टोन जो ना प्रोफेशनल होनी चाहिए, इसका एक पर्पज होता है। क्या पर्पज? दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो बोलते हैं सब्जेक्ट। उसका मेन मोटो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे आप चिट्ठी लिखते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, थाउजेंड्स एप्लीकेशंस कम टू द ऑफिस ऑफ मैनेजर, ही जनरली डजंट लुक टू ऑल एप्लीकेशंस, ही जस्ट सी योर सब्जेक्ट, जस्ट सी योर बाइट, जस्ट सी हाउ यू आर राइटिंग, जस्ट सी हाउ प्रोफिशिएंट यू आर, ये सब चीज़ें। और इसकी जो क्लोजिंग होती है, दैट इज आल्सो यूअर सिंसियरली, ये वर्ड याद रख लो, ये वर्ड हमेशा याद रखना। आगे आएंगे हम आपको बताएंगे, यूअर सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुल्ली। ये सभी एक रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ड्स, फ्रेज है, और इनसे हम लेटर का एंड करते हैं। इस प्रकार जो ना इसकी ये मेन मुख्य मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि भाई ये चीज़ आपने, इसकी क्लोजिंग पोलाइट होनी चाहिए।
ठीक है। अब बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको, जैसे ये आपका एक आंसर शीट है आपकी, ये बच्चों आपकी आंसर शीट है। ठीक है, इसमें आप लेफ्ट साइड, पहले क्या होता था, पहले ऐसे लिखते थे, टू, डी, टू के बाद भी कॉमा लगा दिया, प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगा दिया, जी जी, ट्रिपल एस, खिलाना, फिर को फुल स्टॉप लगा दिया, फिर लिखते थे हम डेट, डेट लिख दिया भाई, आज की डेट है 11/12/2023। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना, आपने डेट लिखनी है December 11, 2023। अच्छा, अब नए तरीके में क्या आ गया, नए तरीके में आपने टू तो लिखना ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। आप नेम को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में योर्स ट्रोली में वहां नाम लिख सकते हो। अब बच्चों, अब एड्रेस, एड्रेस में चार फोर थिंग्स होती हैं, अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है, चार चीज, नेम, ओके, हाउस नंबर, ओके, कॉलोनी, ओके, सिटी, ये मिनिमम चार चीज आपने किसी भी एड्रेस में लिखनी पड़ती है। मान लो भाई नाम ना लिखा, भाई मेरे नाम को चिट्ठी लिखकर किसी ने डाल दी ढोल में, डाकखाने में जाकर, उसमें मेरा नाम में ना था, मेरा नाम ही नहीं था MS यादव, बाकी सारा हाउस नंबर भी लिख दिया, कॉलोनी भी लिख दी, कहाँ रहता हूँ मैं, शहर भी लिख दिया। अब पोस्टमैन कहाँ ढूंढेगा, कॉलोनी में तो आ गया, भाई किसकी है, वो हो सकता है ये गॉड की हो, लेटर टू गॉड पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में, भगवान ने चिट्ठी लिख दी। तो किसी भी एड्रेस में चार चीज़ें जरूरी हैं। तो वी विल गो इन डिटेल इन द नेक्स्ट कमिंग अपकमिंग स्लाइड्स। अब आता है, बताया था मैंने दो प्रकार के लेटर होते हैं, ये दूसरी प्रकार है, और पहली प्रकार कौन सी थी, फॉर्मल लेटर। और आपके एग्जाम में और लाइफ में ज़्यादातर यही आते हैं। क्यों, वाई, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर तो आजकल फोन कर लेते हैं, भाई शादी है आ जाना, भाई घूमने जाना है, चैट कर दिया, व्हाट्सएप चैट कर दिया, मैसेज इज कन्वेड, जब मैसेज ही मिल गया, मैसेज इज कन्वेड, मैसेज कन्वे हो गया, तो वो इनफॉर्मल हो गया, कोई भी पैटर्न अडॉप्ट नहीं किया फॉर्मल का। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे इनविटेशन में हमने किया आपको, ये देखो सारी चीजें रिपीट हो रही है, इनविटेशन हमने किया, इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन, हियर लाइज द पॉइंट, क्या बच्चों, इनविटेशन। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं, लेटर, ये दोनों ही तकरीबन एक जैसे होते, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे लेटर भी फॉर्मल होता है और इनविटेशन भी फॉर्मल होता है, लेटर भी इनफॉर्मल होता है और इनविटेशन भी इनफॉर्मल होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार दोनों एक जैसे होते हैं, उनकी टोन भी वैसी होती है, चीज़ें भी वैसी होती हैं। ये कैजुअल के लिए होता है, दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और मित्रों को लिखा जाता है, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है, एक्वेंटेंसीज को, जान पहचान वालों को लिखा जाता है। इसमें कोई रिजिड कन्वेंशन नहीं होती, यानी कोई रिजिडिटी नहीं होती। यानी रिजिडिटी का मतलब रूल्स, कोई कानून नहीं। यू आर फ्री टू यूज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, किसी भी प्रकार की भाषा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप लिख सकते हैं, लेकिन इट शुड बी प्रॉपर वे। लैंग्वेज भी जो ना आपकी एक प्रॉपर तरीके में होनी चाहिए। इस प्रकार इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा हम इस पे इंसिस्ट नहीं करेंगे। इनफॉर्मल लेटर पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिकॉज फॉर्मल लेटर आपके बहुत कम आते हैं। तो let us move to the next slide. Let us see what is there. इसी प्रकार इनफॉर्मल लेटर में भी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। चलो मोटा मोटा 1 मिनट लगाते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, ये कैजुअल टोन होती है, और वहाँ क्या होती है, पोलाइट टोन। रिस्पेक्टेड सर, वहाँ यहाँ लिख दो डियर, ओ डियर, ओ डियर, डियर राजा, आजा, जल्दी आजा, हो गया लेटर। और ये स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता इसमें। टिपिकली एंड्स विद लेस फॉर्मल क्लोजिंग। एंड्स जैसे हमने कहा ना, रिस्पेक्टेड सर और यूअर्स ट्रूली, एंड करते हैं हम यूअर्स फेथफुली, FAITHFULLY TRUILY, SINCERELY। ये 3 वर्ड्स याद रखें, ये हर लेटर में लिखे जाएंगे फॉर्मल में। तो ऑलवेज लर्न। यहाँ क्या होता है, बेस्ट रिगार्ड्स बोल देंगे भाई, दादी दादा के पास भेजा हो या किसी और रिस्पेक्टेड आदमी के पास भेजे तो इसमें लिख देंगे। और विद लव, छोटे बच्चों को भेजा हो, अपने बच्चों को भेजा हो जो छोटे हैं आपसे, तो वहाँ विद लव कर सकते हो इनकी जगह, विद लव। ये तो इनफॉर्मल में है, और भाई ये फॉर्मल में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ना आप इनकी कन्वेंशन कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। नाउ आई एम टेलिंग यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। यहां तक हमने देखो, यहां तक हमने आपको जो ना बताया कि भाई लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, और लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। तो इस प्रकार जो ना हम इनको लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं। उनकी टोन कैसी होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सभी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको ये रियलाइज होगा, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि आपके सर MS यादव, आपका YouTube चैनल प्रिंसिपल सर इतना ग्रेट होने जा रहा है। आप सभी के प्यार से वेबसाइट आज के दिन रीड लर्न एक्सेल टॉप पर है, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के मामले में टॉप पे है, जिसका उदाहरण हम आपको अभी दे रहे हैं। लेट अस गो टू द स्क्रीन। स्क्रीन पे जाते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं। देखो ये बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल दिखता ना, सर्कल दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो कवर लेटर,
ये गूगल का स्क्रीनशॉट है, ये गूगल का स्क्रीन शॉट है जो अप्रूव करता है, सिद्ध करता है दैट योर प्रिंसिपल सर not only teaching you but he is writing on website read learn excel। ये देखिए, ये इसका सबूत है। कवर लेटर application for job is ranking on world number 1, वर्ल्ड नंबर 1 पे है गूगल में। गूगल में रैंक करना, वो भी नंबर 1 पे रैंक करना, तालियां हो जाएं, चीयर्स, से गुड लक टू मी। ओके, इस प्रकार जो ना आप इस चीज को कर सकते हैं। जैसे ये आपने देखा, ये वेबसाइट कवर लेटर क्या होता है? अरे भाई, कवर लेटर तो एक तो बात है, जब हम इस पाएंगे तो हम आपको वेबसाइट लाइव दिखाएंगे। एप्लीकेशन फॉर जॉब विद सीवी, करिकुलम विटे, रिज्यूमी, बायोडाटा। सीवी होता है, एक रिज्यूमी होते हैं, RESUME, एक बायोडाटा। बायोडाटा बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को मालूम होगा, किसी को यूज करते हैं। इन वर्ड्स को कम यूज करते हैं, बट दे आर वेरी गुड, दे आर स्टैंडर्ड वर्ड्स। इस प्रकार कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माई स्टूडेंट्स। 5 लाख जो ना इसमें व्यू, 5 लाख इसमें वेबसाइट पर व्यूज आ चुके हैं। इस प्रकार 5 लाख व्यूज का मतलब बच्चों, 5 लाख बच्चों ने पिछली साल इसको पढ़ा, और ये लेटर आपका गूगल के नंबर 1 पे है। ओके, लेट अस मूव to the next part. Here starts the music. This is the, you can say, format. सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, फॉर्मेट जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो नंबर 1, सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, नंबर 4 सब्जेक्ट, नंबर 5 सैल्यूटेशन, नंबर 6 बॉडी, नंबर 7 सब्सक्रिप्शन जिसको हम योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स ट्रूली, नंबर 8 आपके सिग्नेचर, और भाई नंबर 9 आपका नाम। इसलिए सेंडर्स एड्रेस में हम नाम नहीं लिखते, नेम सेंडर्स एड्रेस में नहीं लिखना, आगे एग्जांपल्स में हम आपको बताएंगे। तो ये हमने हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको इस दिखाई दे रहा है, आप इट इज विजिबल क्लियरली कि देयर आर 9 पार्ट्स। मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस 9 पार्ट्स। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ टाइम काम करने वाली चीज़ें हैं, सारी लाइफ आपको जो ना ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। क्यों ना आज ही कल के करने वाला काम आज ही कर लें, सो दैट 100% मार्क्स मिल जाए।
टारगेट तो यही है, 100% मार्क्स का टारगेट है। इस प्रकार जो ना हम ये देखेंगे पार्ट्स, अब एक एक पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सेंडर्स नेम का एड्रेस, पिन कोड, इसका पिन कोड, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जैसे मैंने बताया था, ये टॉप लेफ्ट में कर सकते हो, इस राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड में भी आप राइट साइड में भी कर सकते हो, लेकिन इसको बताऊं बेटा, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें हम लेफ्ट में करते हैं। लेफ्ट में वाई, आप पूछेंगे सर लेफ्ट में क्यों लिख रहे हैं, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको, जब एग्जाम्पल आएंगे ना तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि लेफ्ट में क्यों लिखते हैं, राइट में क्यों नहीं लिखते, ये पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग क्यों नहीं करते, जो पहले करते थे, टू के बाद भी कोमा, प्रिंसिपल के बाद भी कोमा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद भी कोमा, और उसके बाद झज्जर, झज्जर के बाद फुल स्टॉप। तो इसके बारे में मैं जब लेटर पे आऊँगा, जब आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। उसके बाद हमने जैसे देखा डेट, डेट एड्रेस के नीचे लिखते हैं, और डेट में आप जो ना ये जो डेट है हमारी यहाँ, ये डेट है, ये देखो, ये डेट है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। डेट बेटा ध्यान से लिखनी है। सेंडर्स एड्रेस चिंता मत करो, वहीं मिलेगी, क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। कैसे, जैसे हु इज राइटिंग लेटर, पहला WH क्वेश्चन हो गया भाई। जैसे मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, जैसे आप चिट्ठी लिख रहे हो, तो आप सेंडर हो गए, भेजने वाले। उसके बाद ऑन विच डेट, कौन सी डेट पर आप, लेट मी इरेज सो दैट यू विल सी द स्पेस। फर्स्ट WH क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है ना, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अरे भाई ये क्वेश्चन ही तो हैं, आपने कितनी मेहनत करी, नोटिस में भी आपने WH क्वेश्चंस करे टू फाइंड आउट द आंसर इन क्वेश्चन इटसेल्फ, इनविटेशन में भी आपने WH क्वेश्चंस किए टू फाइंड आउट आंसर इन द इनविटेशन क्वेश्चन, और आज फिर आप लेटर में WH क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आस्क हु इज राइटिंग। ये बच्चे बहुत ध्यान से देखना, ये मैं आपको जितनी, ये 9 पॉइंट थे ना, तो 9 क्वेश्चन बनाऊंगा। और हु इज राइटिंग का मतलब ये हो गया हमारा सेंडर, कौन हो गया, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। भैया तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, नहीं तो अपनी तरफ से सपोज कर लेना, मान लेना, और आप स्वयं को मान लेना, और अपना नाम अल्टा पल्टी कर देना, XYZ कर देना, रमेश है तो सुभाष लिख देना, तो ये आप मान सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, ऑन विच डेट, ऑन विच डेट you are writing letter, कौन सी डेट को लिख रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सेकंड पॉइंट ये बन गया, ये बन गया रेफरेंस और डेट, ये पॉइंट बन गया। इस प्रकार थर्ड पॉइंट डेट के बाद आता है, लेट अस टेक नेक्स्ट स्लाइड, रेसिपिएंट्स एड्रेस, दिस इज थर्ड पॉइंट। ओ, और आप कह सकते हैं, लेट्स कट कर दो इसको, टू whom you are writing, आप किसको लिख रहे हैं, that becomes receivers, प्राप्त करने वाला का,
एड्रेस एंड नेम, और नेम एंड एड्रेस। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया WH, उसका उत्तर भी दे दिया। दिस आल्सो यू विल गेट इन क्वेश्चन पेपर 90%, मोर देन 90% केसेस यू विल गेट दिस आंसर इन योर क्वेश्चन पेपर। तो अभी तक आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इट्स वेरी इजी। तीनों प्रश्नों का उत्तर तो दिया है। कौन भेज रहा है भाई? कौन सी डेट को भेज रहा है भाई? किसको भेज रहा है भाई? टू हुम? ये 3 क्वेश्चंस का उत्तर हमने दे दिया। इसका मतलब आप कहां पहुंच गए? यहां तक, सैल्यूटेशन तक। ये आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस का मतलब क्या हो गया भाई? आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? अगर कोई आपकी एज से कम का है, यंग है, तो आप उसको लिख सकते हैं, सॉरी, डियर, डियर राम। बड़ा है, रिस्पेक्टेड सर। जॉब के लिए ऑलवेज इस वर्ड का, रिस्पेक्टेड मिस्टर राम। ये दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। तो इसका क्वेश्चन क्या बन गया? हाउ कैन यू और हाउ डू यू राइट सैल्यूटेशन? कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन आ गया। बस जैसी एज, जैसा रिस्पेक्ट, जैसा पर्सन, उसके हिसाब से आप सैल्यूटेशन जो है ना डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है। और इसके बाद अभी फॉर्मेट पर हम जाएंगे, बहुत बड़ा है, काफ़ी समय लगेगा, लेकिन लाइफ टाइम, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द लाइफ टाइम एसेट ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल सर। I challenge each and everybody that nobody can cross me in this topic, as you have already seen the proof. You can visit my website, read, learn, excel.com. See the music. इस बात को प्रूव करती है that this is my experience. ये मेरा अनुभव है। 30 years, 30 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो गया बच्चों। 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब कई बच्चे कहेंगे सर तो हिंदी में बात कर रहे हैं। Yes, because our mother tongue is Hindi. If you might have belonged to UK, I would have changed my style and language. I would have different method of teaching you. And I would have said salutations, dear students. Do you know how to write salutation? How to write salutations? You will say, sir, I don't know. Sir, I couldn't understand what you are speaking. Because you speak a lot of English in classroom. You know what happened one time, excuse me for 1 minute only. When I was teaching in Jhajjar in government संस्कृति स्कूल, जो अभी संस्कृति स्कूल है, पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ मैंने 12-13 साल टीचिंग का काम किया है। एंड आई यूज टू टीच साइंस स्टूडेंट। दैट टाइम आई वॉज यंग, मैं यंग भी था और एनर्जेटिक भी था, जो आज भी हूँ। आज भी यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ। आई वर्क 16 to 17 hours डेली। देर वहाँ मैं क्या करता था? आई just entered the class and start speaking in English, and every chapter without
translating even a single word in Hindi. Students, समझ में नहीं आया सर क्या हुआ? समझ में क्यों नहीं आया भाई? समझ में क्यों नहीं आया? वहां जाके मैं बच्चों को कहता भाई समझ में क्यों नहीं आया? सर आप तो हिंदी बोलते ही नहीं है. So what? It's not required. Tell me, where do you get Hindi in your question paper? Where do you get even a, e? Do you get anywhere such letters in English? Because it is English language and question paper is in English. Syllabus is in English. Curriculum is in English. So you are not supposed to ask me to speak in Hindi and write in Hindi. I knew it. What was my intention? I am not boasting myself. My intention was just to listen what I speak. Let my students listen. Let them learn listening also. Let them learn how to speak, how to communicate, how to talk to a person and the way any language. तो इस प्रकार जो ना हम सारी चीजें जो ना करते हैं. लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट. ये एग्जांपल्स है, ये आपके लिए थोड़ा आपको जो ना बूस्ट करते हैं, आपकी नॉलेज को, आपकी हिम्मत को बूस्ट करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, एनहांस करते हैं. बूस्टिंग, एनहांसिंग, एप्रिशिएट, ये चीजें एक एनकरेजमेंट है. एनकरेजमेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. जब मैं आपको स्पीकिंग का काम कराऊंगा तब मैं आपको तब अपनी लैंग्वेज भी बता देंगे. हाँ, बिकॉज वन थिंग मोर, लेट मी टेल यू, आई एम नेचुरल स्पीकर. मैं नेचुरल स्पीकर हूं. इन इंग्लिश IELTS 7.5 band. I leave this abbreviation to solve yourself. Search on Google and find out what is IELTS. Okay, let us come to the main point. Body. हर चीज की बॉडी होती है. ये हमारा शरीर है, ये हमारी बॉडी है, और इस बॉडी में अगर जान नहीं है तो दिमाग में जान नहीं आएगी. बॉडी में जान होना जरूरी है. इट मीन्स जो बॉडी ऑफ द लेटर है, द फॉर्मल लेटर, हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, हम फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, इज अ लाइफ लाइन. लाइफ लाइन ऑफ ए लेटर. हम इसके पार्ट्स बताएंगे कैसे कैसे करना होता है. ये पैराग्राफ्स में होती है, आगे आएंगे बता देंगे, कोई टाइम ज़्यादा लग जाएगा. उसके बाद क्लोजिंग होती है. क्लोजिंग भी इम्प्रेसिव होती है. और उसके बाद सिग्नेचर आ गया, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. फिर उसके बाद साइन कीजिए, और साइन करने के बाद जो ना आप चिट्ठी को आगे भेज दीजिए. इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि नंबर 1 ये आपका फॉर्मेट है. एक बार आप इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे, वो बच्चे कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे. लेट अस सॉल्व 1 पॉइंट बाय 1. लेट अस टेक एवरी पॉइंट सिंसियरली एंड रिमेंबर. इस प्रकार जो ना हमने देखो
अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, फॉर्मेट बताया कि फॉर्मेट में 8 से 7 या 8 या 9 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, नंबर 1 सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, नंबर 2 डेट और रेफरेंस। रेफरेंस जैसे ऑफिस से मैंने कोई चिट्ठी लिखी अपने ऑफिसर्स को या किसी और अधिकारी को, तो उसमें एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस नंबर। उसमें हम सीरीज लगाते हैं, फिर डेट, कौन सी डेट को। तो इस प्रकार दूसरा पॉइंट डेट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, रिसीवर्स। चौथा पॉइंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अट्रैक्ट the reader, to attract the boss where you are going to apply for job. And then comes the life of formal letter, that is called body. This is our body and that is letter's body. Our body should be strong and convincing. यहाँ बच्चे आके मार खाते हैं, इस बॉडी के अंदर बच्चे आके मार खा जाते हैं, बिकॉज योर ग्रामर इज गोइंग टू बी चेक्ड, योर स्टाइल इज गोइंग टू बी चेक्ड, योर पैटर्न इज गोइंग टू बी चेक्ड, हाउ यू आर राइटिंग ए लेटर, दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड एंड दैट विल बी एनालाइज्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लेटर. So always remember to write a very good body. Then after writing body, let us, the next point is called, sometimes we write thanks or salutation, respected sir, respected ma'am, respected Mr. Sham, respected Mr. M.S. Yadav, respected principal, respected manager, respected managing director, respected CEO, chief executive officers. देन साइन कीजिए, देन अपना नाम लिखिए। तो इस प्रकार जो ना आप लेटर को कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। जो अभी मैं आपको देखो एग्जाम्पल्स के साथ, आगे जब आएंगे तो एग्जाम्पल्स के साथ कराएंगे। और इसमें भी इनफॉर्मल में भी यही चीज़ें होती हैं आमतौर पर, लेकिन इनकी टोन अलग होती है। ये वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। और जैसे कि आपको पता है कि इनफॉर्मल लेटर आपके एग्जाम में नहीं आते आमतौर पर, बहुत कम आते हैं। जनरली मैंने देखा नहीं है कहीं इनफॉर्मल लेटर आ जाए। लेट अस अनदर धमाका, एक और धमाका। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, एक और सबूत, फॉर्मल लेटर टेम्पलेट ट्रिक्स एग्जाम्पल्स, ये आपको मिलेगी वहां। गूगल पर सर्च करोगे फॉर्मल लेटर टेम्पलेट्स ट्रिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश। जैसे हमने सर्च किया तो ये आपका कहाँ मिला बेटा, ये एडिटर का है, ये एडिटर वाला है। लेटर टू एडिटर आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में लेटर टू एडिटर आएगा, चाहे वो कर लो चाहे एप्लीकेशन कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू शो यू, ये देखिए, ये लेटर टू द एडिटर, जहां ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये राउंड में, जैसे आप ये सर्च करेंगे फॉर्मेट टेम्पलेट्स ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर टू द एडिटर, ये टाइप करेंगे, जैसे मैंने ऊपर टाइप किया तो हैशटैग नंबर वन। इसलिए आपके सर की वेबसाइट जो आपकी अपनी है, आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी, वहां जाइए और वहां रीड लर्न एक्सेल.com, वहां पढ़िए फॉर्मल लेटर डिटेल में।
वहां पढ़िए सभी प्रकार का एडिटर, जॉब्स, कवर, ऑफिशियल, बिजनेस, जो भी लेटर आप पढ़ना चाहें वहां पढ़िए और सभी नंबर 1 पे हैं। आई चैलेंज, मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि इनके बराबर अगर कोई लेटर इतने वर्ड्स इतने ब्यूटीफुली अगर किसी ने लिखा हो तो मैं जैसे जैसे बच्चों अभी हमने देखा कि लेटर टू द एडिटर वेबसाइट के ऊपर वर्ल्ड में नंबर 1 है, और नंबर 1 है तो उसी को आपका अध्यापक, आपका डियर सर यू कैन से, respected sir you can say, I am always a friend of my students, I always love, I always talk to them in a good way, in a soft way, I never try to put any pressure on my students. So see, here is the case, live case, yesterday only, कल ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, कल ही। आई वॉन्टेड टू चेक वेयर डू आई स्टैंड, काफ़ी दिन पहले लिखा था ये मैंने, बहुत साल, 1 साल होगी तकरीबन, आज भी ये नंबर 1 पे है। ठीक है, तो आप इसको वहां जाके पढ़िए। ठीक है बच्चों, लेट अस टेक नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड यू कैन से देर आर 7 C's। अभी लेटर लिखने के टाइम लिखने से जो ना आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि लेटर में 7 C's होती हैं। इट शुड बी, देखो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, पढ़ लेना। क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कंक्लूसिव, जिसका कंक्लूजन होना चाहिए, निचोड़ होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट भी होना चाहिए, ग्रामेटिकल है, स्ट्रक्चर वाइज करेक्ट है, सेंटेंसेस ठीक हैं, बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ठीक है, मिडिल सेक्शन ऑफ द बॉडी ठीक है, एंड ऑफ द ठीक है। जो बॉडी, जैसे करेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक फॉलो किया फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट को फॉलो किया 100%, देन इट इज कॉल्ड करेक्ट। 7 C's का मतलब, मेरे सारे वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं। देखो, क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, ये सारे वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं, तो भाई जो ना बढ़िया चीज मिलेगी आपको। ठीक है, कंसिडरेट, सीधा अनदर वर्ड, कंसिडरेट। ये कंसिडरेट क्या होता है भाई कि the letter's recipient, when writing a letter, always be courteous so that it can be considered. रिसीवर्स को courteous दिखेगा, अच्छी लैंग्वेज दिखेगी, तो ही तो वो एक्सेप्ट करेगा। कॉन्क्रीट, टू द पॉइंट, ये टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें लिख रहे हैं। ऑलवेज राइट टू द पॉइंट्स, ऑलवेज लिमिटेड अप टू द limitation of the words you must keep in your mind, that how many words you are going to write. It doesn't mean that you have write a big letter in 3-4 pages and you cannot expect that you will get 5 marks. No, not at all. It means it should be concrete, concise. concrete और concise होना चाहिए, टू द पॉइंट। ये फालतू बकवास नहीं होनी चाहिए उसमें। भाई कई बच्चे क्या करते हैं, हम देखते हैं एग्जाम में, जब पेपर चेक करते थे हम एग्जाम में देखते थे कि बच्चे ना 1 पेज तो सारा ना 2 पेज 3 पेज 2 पेज का लेटर लिख देते थे। ये एग्जाम के अंदर आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है।
एक पेज से ज़्यादा मत करो, ज़्यादा ज़्यादा। ये आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है, एक पेज है, इसमें सारे पॉइंट्स बनाओ या बॉडी बनाओ, ये पॉइंट्स बनाओ और इस प्रकार आप इसको लिख दो। अगला पॉइंट है कोहेरेंस। इट मीन्स कोहेरेंस का मतलब एक पॉइंट सेंटर सेंटर, दो पॉइंट, डेट, 3, 4, 5 और ये जो बॉडी है ना ऑफ ए लेटर, इसमें कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए होने चाहिए भाई। और जुड़े जुड़े नहीं होने चाहिए, मीनिंगफुल भी होने चाहिए। मतलब उसका मतलब साफ नजर आना चाहिए। एक सीरीज सिस्टमेटिक स्टेप वाइज लिखना होता है, वो होता है। एंड इट शुड बी कंप्लीट। और सातवां पॉइंट क्या है, ये कंप्लीट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस कि आपने फॉर्मेट भी अडॉप्ट किया, आपने 7 पॉइंट्स भी लिखे, आपने बॉडी भी लिखी, आपने सैल्यूटेशन भी लिखा, बॉडी में आपने बिगिनिंग अच्छी करी, मिडल अच्छा करा और उसकी एंडिंग अच्छी करी। यानी बिगिनिंग का सेंटेंस बढ़िया लिखा, मिडल का सेंटेंस बढ़िया लिखा, क्योंकि एग्जामिनर आपके ना बॉडी का पहले सेंटेंस से पहला सेंटेंस होगा ना, वो ऐसा धांसू होना चाहिए, धमाकेदार, ताकि एग्जामिनर को तुरंत इंप्रेशन पड़े, भाई बालक तो ना एंडी छोरा है, भाई बालक ने तो तोड़ बैठा दिए। और उसके बाद आप अपना सिग्नेचर कीजिए। एक्सक्यूज मी, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, पानी पी लेते हैं। गुड, थैंक यू थैंक यू। ये देखो, ये इमेज आपने देखी ऊपर, एडिटर वाले लेटर में मैंने ये इमेज डाली है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, ये सीबीएसई के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इस पे ई बुक भी है, अमेजन पे मिल सकती है, अमेजन पे फ्री में, और इसकी पीडीएफ भी है और ये वेबसाइट पे भी है। मेरी गारंटी है बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% इसी में आएगा, 100%। जो मैं करा दूंगा वो एग्जाम में आना है, आप मान के चलना इस बात को। अगला, ये इंपॉर्टेंट चीजें है, इसको ये इसका जो एक टेम्पलेट है हम बना देते हैं। जैसे पेपर में आपने उसको, आपको आसानी रहेगी इसको तो ना पेपर में लिखने में। ऊपर लेटर लिखिए, नाम लिखिए, ये टेम्पलेट हो गया इसका। ये सेंडर से एड्रेस यहाँ लिख दिया एड्रेस, ये डेट यहाँ लिख दी डेट। ये वहाँ नहीं लिखने आपने, ये मन में रखने हैं। लिखने कौन से हैं, एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है या रेफरेंस नंबर लिखना है, ये चीज़ें आपने लिखनी है। रिसीवर्स एड्रेस ये भी नहीं लिखना वर्ड, ये अपने माइंड में लेना है। हु इज रिसीविंग, हु इज गोइंग टू रिसीव योर लेटर, उसका नाम, इस प्रकार जो है ना उसका आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, उसका एड्रेस हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट। देखो बेटा, इस बात पे मैं थोड़ा कंसंट्रेट करूंगा, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सब्जेक्ट जो होता है बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे पुअर कंडीशन, कंडीशन ऑफ रोड्स इन कॉलोनी। ये मान लो आपके कॉलोनी में रोड खराब है, तो आपने सिर्फ इतना है, पुअर कंडीशन रोड्स इन आवर कॉलोनी, इतना है। ये नहीं कि आप 2 सेंटेंस लिख रहे, 3 सेंटेंस है, नो 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 नो, राइट सम फ्रेजेस, 1 2 3 4 5 वर्ड्स एनफ, इट विल डू। उसके बाद सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन ऐसे नहीं लिखना, सैल्यूटेशन लिखो, फिर नीचे डियर सर और मैडम नहीं, डियर सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना बस। उसके बाद बॉडी, हम बॉडी पे थोड़ा ध्यान दें। बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे तो शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे,
उसको ढंग से नहीं चलाओगे, सुबह नाश्ता नहीं करोगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, ये दूध नहीं खाओगे, रोटी समय पर नहीं खाओगे, तो बॉडी खराब हो जाएगी। बॉडी खराब होगी तो क्या हो गया, लेटर भी खराब। और नंबर 3, 3 क्यों, अब आगे सर 3 तो फिर भी आगे, अगर बॉडी खराब है तो ऊपर नीचे ये तो सारी चीजें हैं, ये तो लिखी है हमने सब, हर एक पॉइंट का नंबर होता है, हर एक पॉइंट का नंबर होता है। और बॉडी के 3 नंबर होते हैं बच्चों, 3 में से 1 नंबर की तो आप लिखोगे। अब ये देखो, ये है असली बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी का जो पहला पैराग्राफ होता है उसका पहला सेंटेंस दांसू होना चाहिए, दिस इज टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट you have not fulfilled the terms and condition of the contract of sending books for your given orders। वाइड ऑर्डर नंबर लिख दो। भाई किताबें मंगाई थी आपने, कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपकी दुकान है, शॉप है, आपने पब्लिशर के पास जो ना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ठेका कर लिया कि भाई मैंने जो ना 1000 किताबें लेनी है और इतने समय पर लेनी है और ये उनकी पेमेंट शेड्यूल रहेगा, तो एक ऑर्डर कर दिया और वो किताबें समय पर नहीं आई तो फटी हुई आई, तो कंप्लेंट लिखनी है। उसके लिए ये जो बिगिनिंग सेंटेंस है ना, दिस इज टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट यू हैव नॉट फुलफिल्ड, आपने अपने वचन को पूरा नहीं किया, शर्तें जितनी लगाई गई थी वो पूरी नहीं गई, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या शर्तें थी, इस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उसके बाद यू फेल्ड टू सेंड, अब मेन बॉडी में यू फेल्ड, फिर डिटेल में बताएं, फिर आप 3 या 4 सेंटेंस में, 3 से 4 सेंटेंस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बेटा, ज़्यादा करोगे ना तो गलत करोगे, ग्रामर गलत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 3 सेंटेंस तो जो ना हम कह सकते हैं कि 2 से 3 सेंटेंस तो लिख दो आप पहले पैराग्राफ में, और 2 से 3 सेंटेंस लिख दो आप दूसरे पैराग्राफ में, और 2 से 3 सेंटेंस लिख दो आप तीसरे पैराग्राफ में बॉडी में। इट विल डू, इट विल सॉल्व योर पर्पस, पर्पस सॉल्व। एंड व्हाट इज द पर्पस? 5 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स, you got 5 मार्क्स। इस प्रकार आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी जल्दी, और क्योंकि काफ़ी समय हो गया, कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लें, समय कितना भी हो जाए भाई। आज पढ़ाई का इतना मन कर रहा है कि जितना ज्ञान भरा है इस दिमाग के अंदर वो सारा का सारा आपको बता दिया जाए। बच्चों, यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर देखा, पार्ट्स देखे, फॉर्मेट देखा, पहला बॉडी का पहला सेंटेंस कैसे लिखते हैं, मिडिल सेंटेंस कैसे लिखते हैं, और कंक्लूड कौन से सेंटेंस से करते हैं, ये सब बातें हमने देखी। लेट अस टेक 1 or 2 एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर सर। You will get each and every question solved from CBSE. It can be from Haryana board, it can be from any board, any country. You will get answer on Read, Learn, Excel. Let us move to the example. देखिए, You are दीपांशी, आप दीपांशी हैं, धर्मेंद्र भी हो सकते हैं भाई, आप धर्मेंद्र भी हो सकते हैं, धर्मेंद्र जितेंद्र, धर्मवीर की जोड़ी, आप हेमा मालिनी भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो भाई आप तो सर दीपांशी, जितनी ये मेरी बच्चियां हैं ना, ये मेरी बच्चियां सारी दीपांशी लिखेंगी। क्या लिखेंगी? दीपांशी, नो अदर ऑप्शन। और कोई नाम
नहीं है आपके पास लिखने के लिए, कदे अपना नाम लिखा हुआ पूजा, यहाँ आ रहा है दीपांशी, आप लिखे हैं पूजा, बेटा नंबर नहीं मिलेगा एक भी। इसलिए हु इज राइटिंग दीपांशी। इफ यू आर ए बॉय, जितने भी बच्चे एग्जाम में हैं सभी के सभी धर्मेंद्र होंगे, हीरो बन गए, मौज होगी भाई, सारे धर्मेंद्र भाई होंगे, धर्मवीर की जोड़ी धर्म हो गए, धर्म भाई हो गए। रेजिडेंट ऑफ रोहतक, सेंडर्स, नेम हो गया भाई। चलो मैं अपनी बच्चियों के बारे में लिख देता हूँ, मेरी बेटियों के बारे में लिख देता हूँ, उनको समझा देता हूँ, बेटों को भी समझा देते हैं। सेंडर्स नेम तो भाई नहीं लिखना, मैंने बताया इधर नीचे लिखाएंगे यूज टू ली के बाद। भाई रोहतक का है तो भाई रोहतक का कोई हाउस नंबर भी होगा, कॉलोनी भी होगी भाई, कोई सिटी भी होगा भाई, कोई इसको छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, इसको लास्ट में लिख दो। हाउस नंबर भाई उनका है 47, सेक्टर 6 से भाई, दिल्ली रोड से भाई रोहतक है। अब ना तो यो दे रखा, ना यो दे रखा, ना यो दे रखा, यो दे रखा और ये दे रखा है। दो चीज दे दी तो मैंने बताया था एड्रेस में 4 चीज जरूरी है, 5 दोगी तो 3 चीज अपनी तरफ से उनका घर का पता लिख दे, कोई घर नंबर लिख देना, कोई कॉलोनी लिख देना, कोई सेक्टर लिख देना, फॉर्मेट पूरा होना चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। 5 चीजें, 4 थिंग्स जो ना, ये आपको ये 4 चीजें इसमें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद डेट, और डेट की तो कोई बात है कौन है, नू मत, नू भी लिख दियो चल जाता है, और लिख दो मार्च, मार्च हो गया भाई हमारा पेपर, मान ले 20 ने है, पेपर वाली तारीख लिख देना भाई यहाँ, ठीक है, जिस तारीख को आपका पेपर है वो तारीख लिख देना यहाँ। इसके बाद जो ना आप लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें पूरा लेटर हो जाएगा। उसने किसके लिए अप्लाई कराया था भाई, पहले तो हमने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा है कौन है, अरे भाई बावली हो गए हम तो, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है कौन है, रोहतक का है भाई, रोहतक की मेरी बेटी दीपांशी और मेरा बेटा भी रोहतक का है, उसका नाम है धर्मेंद्र, सारे बेटे धर्मेंद्र लिखेंगे, सारी बेटियां दीपांशी लिखेंगी, और हम सारे रोहतक के रहने वाले हो भाई, यू ऑल बिलोंग टू रोहतक एंड ऑल गर्ल्स आर supposed to write Dipanshi, Dipanshi, Dipanshi as per the question. क्वेश्चन के अनुसार दीपांशी ही लिखना है, you don't have any other options. Advertisement for the post of teacher, सब्जेक्ट आ गया भाई, सब्जेक्ट आ गया भाई, सब्जेक्ट आ गया फॉर द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन आप लिख सकते इसको, एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ टीचर, इंग्लिश टीचर, अंग्रेजी का टीचर चाहिए, देख ले भाई अंग्रेजी की टीचर बनने लायक होग नहीं, अपने गुरुजी की तरह से होग नहीं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कुछ नहीं कर सकते हो, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, कुछ नहीं आता था, अंग्रेजी में कमजोर थे, पढ़ना बहुत आता था, होशियार बहुत थे, बोलना नहीं आता था, कोई बात नहीं अब सब आता है, नाउ इट्स वेरी इजी, थिंग्स हैव बिकम सो इजी दैट आई कैन स्पीक like a natural speaker. If I confront an American, I will start speaking the way he speaks. So it's not a big issue. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, तो आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो, सीख ही लीनू, मान लो गुरुजी के जो ना गुरुजी के चैनल पर आएगी, गुरुजी की क्लास में आएगी तो अंग्रेजी आएगी, तो आपने प्रिंसिपल भाई साहब को लिखना है, स्कूल का नाम गंगा इंटरनेशनल दिया था, उसमें पानीपत का था भाई, ये पानीपत का था, क्या एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट हो गया भाई, रिस्पेक्टेड सर हो गया। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, लो आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैं इन चीज़ ध्यान देने की अब बताऊंगा वो चीज़ क्यों नहीं है, ये देखो प्रिंसिपल है, ये स्कूल का नाम है, ये दिल्ली रोड है, ये पानीपत है,
इसमें कहीं भी पंक्चुएशन मार्क लगाया, कोमा लगाया, सेमीकोलन लगाया, इक्वल टू लगाया, फुल स्टॉप लगाया, नहीं लगाया? वाई? दिस इज मॉडर्न स्टाइल। ये मॉडर्न स्टाइल वाई? क्यों मॉडर्न बनी है? क्योंकि इन चीजों में लगाने में समय लगता है एंड टाइम मैटर्स। अगर आप लगा भी देंगे ना कोमा और यो छोड़ दिया अरूरा कोमा ला दिया, अरूरा फुल स्टॉप, नंबर काट लेगा ना, वो भाई साहब पूरे क्यों ना लाया? इसलिए इनको अवॉइड कीजिए, ऐसा करती है, कहीं भी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर सिंपल। आप देखो स्टार्टिंग, आप कहां से पता लगे आपने? कंसर्निंग योर एडजस्टमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन द ट्रिब्यून। कौन सी डेट को? 20 मार्च को 2023। आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर रेपुटेड स्कूल। स्कूल की थोड़ी तारीफ कर दो, इंस्टीट्यूशन की तारीफ कर दो ताकि जॉब मिल जाए भाई। इसलिए तो यहाँ रिस्पेक्ट है, कर्टियस था, पोलाइट था, इसलिए यहाँ पोलाइट भाषा का प्रयोग होता है। अच्छा एक बात और आप कहोगे, सर आप तो ना एप्लीकेशन फॉर जॉब कराने लग गए, ये तो अगले लेक्चर में करनी थी। अरे ना बेटा, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल उसी का है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर समझा रहे हैं, फॉर्मल लेटर है ये। I am highly interested in this position. I would be highly thankful if you could consider my application for the said post. मैं बहुत धन्यवादी हूँ अगर आप मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर कर ले। उसके बाद अपनी डिग्री बताएं, कहाँ से करी है? डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जैसे मैं भी वहीं का डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का हूँ, मैंने भी वहीं से MA इंग्लिश की थी। आई हैव बीन वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर। ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, इसलिए मैंने जल्दी इसको ना 2 मिनट में, आई टेक ओनली 2 मिनट्स टू राइट, मैं 2 ही मिनट लेता हूँ बच्चों। और उसके बाद दिस विल हेल्प यू टू स्टॉप सच इंसिडेंट। इस प्रकार जो ना आप इनको ये लिख के और अगली स्लाइड में जाते हैं। स्कूल फॉर द लास्ट 2 ईयर्स में किसी स्कूल में 2 साल से काम कर रहा हूँ। वाइल वर्किंग एज ए टीचर विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आई हैव कम अक्रॉस ए लॉट ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशन। देयरफॉर, यानी जो बॉडी है ना बच्चों, अब वो सुन लो, जो कमजोर बच्चे हैं, जो अपने आप को कमजोर मानते हैं, वो क्वेश्चन में से 3-4 सेंटेंस उठा ले। दैट आई एम अप्लाइंग फॉर इंग्लिश टीचर, आई हैव वर्क 3 ईयर्स, आई एम MA इंग्लिश, हो गया। प्लीज कंसीडर माय एप्लीकेशन, माय बायोडाटा इज देयर विद द एप्लीकेशन। होगी बॉडी, आपको भी 4 मिल जाएंगे, ले भाई तू भी 4 ले ले। इतना ही लिखना में सिंपल। यूअर्स फेथफुली हो गया यार भाई। दीपाली हो तो दीपाली लिखेगी, धर्मेंद्र धर्मेंद्र लिखेगी, दीपांशी दीपांशी लिखेगी। जो नाम ऊपर दिया गया है उसी नाम पर आप अपना कंसंट्रेट रखें। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो बेटर रहेगा। राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग, कंप्लेन लेटर है इसको बोलते हैं, कंप्लेन। कंप्लेंट करनी हो भाई, चोरी होगी, लाइट ना आती, फीवर है, पर आवारा पशु घूम रहे हैं, गांव में बिजली नहीं आती और एग्जाम चल पर खड़े हैं, तो भाई आप कंसर्न अफसर को कंप्लेंट करेंगे। हरियाणा बोर्ड में आया था 2017 की डी सेट में। तो इसी प्रकार इसमें भी वही सारी बातें। इसके अंदर देखो एक चीज तो है, इसके अंदर आपने देखा होगा कोई भी नहीं दे रखे, तो ये सारी चीज अपने आप बनानी है, ये सब अपने आप बनाने हैं। कौन भेजने वाला, कौन प्राप्त करने वाला है, इस प्रकार ये एक्सरसाइज आ गई, इनको आप करिए। और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं और लेट अस सी व्हाट इज देयर। ये एक्सकर्शन टूर चला गया, उस पर उसकी प्लानिंग है, हॉस्टल में हॉस्टल प्रोवाइड करने के लिए ये लिख दो जीन, ये सेक्रेटरी को लिख दिया। इस प्रकार जो ना आप इसको लिख सकते हैं। तो लेटर लिखना हमने अभी देखा, ये लेटर लिखना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये ठीक अच्छा है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी मेंबरशिप इन दिल्ली। ब्रिटिश काउंसिल कहाँ है? कनॉट प्लेस पे है, 12 खंबा रोड पे। वो अंग्रेजी सिखाते हैं, IELTS वही कराते हैं।
और वहाँ एक लाइब्रेरी में जहाँ आप लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं, वहाँ सब सीडी सब टेक्नोलॉजी आपको वहाँ मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। वहाँ जाकर बैठ के पढ़ लो, तैयारी कर लो, सब लिटरेचर की किताब मिलेंगी, वर्ल्ड की सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी हर चीज़ पर कंप्यूटर मिलेगा। तो वहाँ आपने मेंबरशिप लेनी है तो हेड लाइब्रेरियन से एक चिट्ठी लिखनी है, उससे डिटेल पूछनी है भाई क्या क्या कंडीशन हैं। और आप यहाँ प्रीतम और प्रिया हो भाई, सारे मेरे बेटे हैं ना, वो सारे मेरे बेटे भी बन गए प्रीतम, सारे मेरे बेटे प्रीतम बन गए जिसने पेपर देना है यो करना है क्वेश्चन, और सारी मेरी बेटियां बनेगी प्रिया, तो सब ने प्रिया लिखना है लड़कियों ने। तो बताइए क्या है इसमें, कुछ नहीं। एड्रेस में ये भी नहीं था हमारे पास, अपने मर्जी से लिख दिया, यानी अपनी मर्जी से चार चीज लिखनी है, अगर नहीं आए तो हाउस नंबर, लोकेशन यानी कॉलोनी, सिटी यानी झज्जर, जैसे अपना शहर झज्जर है तो यहाँ झज्जर लिख दिया, सेक्टर 6 में रहता हूँ मैं झज्जर, तो मैंने अपना लिख दिया। एग्जाम में तो था ही नहीं, कुछ भी लिखो, तारीख लिख दी भाई। हेड लाइब्रेरी, हाँ यो था हेड लाइब्रेरियन दे हो रहा, इसको लिखनी थी। और कहाँ लिखनी थी, ब्रिटिश काउंसिल को, लाइब्रेरियन को, ब्रिटिश काउंसिल। या तो दो चीज़ तो इसमें थी, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस लेटर को कर सकते हैं। लेट अस क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। और एक एग्जाम्पल अभी हम सीबीएसई में क्या पैटर्न आता है, देखो बच्चों, सीबीएसई में 120 से 150 वर्ड्स का लिखना होता है, ध्यान रखिए। बी लिमिटेड, बी इन लिमिट्स ऑफ मैक्सिमम वर्ड्स, कितना बेटा, 120 से 150। भाई 120 तो लिखने लिखने, इससे कम नहीं, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 120 और नॉट ग्रेटर देन 150, ऐसे करते हैं, नॉट ग्रेटर। 150 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 120 से कम नहीं होने चाहिए, राइट समवेयर इन बिटवीन। 150 के 160 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 120 की 110 ना हो भाई। तो मिनिमम तो 120 रखियो, और भाई मैक्सिमम 150। भाई मूड बन जाए बढ़िया लिखने का तो 160 भी लिख दो, कोई बात नहीं। पर यूँ कौन है कि 500 वर्ड्स लिखे आए, वो गलत हो जाएगा भाई। 500 वर्ड्स नॉट अलाउड। फिर क्या करता है एग्जामिनर, कई बार हो सकता है कोई बात नहीं, बच्चे ने लिखा है दे देते हैं नंबर, बट अगर गलतियां कर दी, मिस्टेक्स कर दी, और आपका पैराग्राफ 500 वर्ड्स का है, तो बेटा व्हाट विल हैपन, डू यू नो, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स इंक्रीजेस, चांसेस इंक्रीज, मिस्टेक्स के चांस बढ़ जाएंगे, चांस बढ़ गए मिस्टेक तो नंबर कट जाएंगे, क्यों चक्कर में पड़ो भाई। 5 नंबर का आता है, सुन लो भाई रे सारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों। 1 नंबर का तो फॉर्मेट आ गया, हमने बढ़िया ढड़ करा दिया। आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज का आइडिया का मतलब है ये बॉडी, ये बॉडी है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्शन दो अपना, इसमें मेन पॉइंट बताओ आप क्या क्या करते हो, इसमें आप कंक्लूजन दो, एक्सपेक्ट करो। और इसका जो बिगिनिंग पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है वो बढ़िया लिखो, दूसरे का बढ़िया लिखो। यानी एग्जामिनर ने अगर पहला सेंटेंस देख लिया भाई छोरा तो बहुत बढ़िया बात लिखा है, तो भाई गण करे एग्जामिनर नीचे ना पड़े करी के कराया है के ना कराया, इसलिए आपने घनी सी चिंता करने की जरूरत को नहीं, ठीक है। इस प्रकार जो ना हमने ये लेटर करे, इसके कितने नंबर आते हैं, और स्पेलिंग और ग्रामर है ना, ये भी भाई सुन लो, ये आओगी 1 नंबर की। यानी ग्रामर भी गलत कर दी ना, मान लो आपने 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स कर दिए तो नो मान ले, 1 नंबर तो थक गया भाई। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज, इसलिए जो ना आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए। तो बच्चों आज के वीडियो का जो मेन सारांश है वो, आज के वीडियो का जो मेन सारांश है वो जो ना हमने क्या देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लेटर।
what is format of formal letter, what is the structure, क्या स्ट्रक्चर है, क्या एलिमेंट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, सेंडर्स नेम, डेट, रिसीवर्स नेम, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर और मैडम, बॉडी 3 पैराग्राफ में, फिर रिस्पेक्टेड, और आखिरी में आप कर सकते हो थैंक्स, यूअर रिस्पेक्टफुली, yours sincerely, yours truly, yours faithfully। बहुत पुराने वर्ड हैं, वो क्लियर होना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा, मान के तो लो आओगा तो इनविटेशन करा क्या वैसे ही इसने बना दिए भाई, अपने दोस्तों को या किसी रिश्तेदार को लिखना आएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ना आप इसको यहाँ बना सकते हो। तो इसमें जो ना 7 C's का हमने जिक्र किया, कंपैक्ट, कंक्रीट, कर्टियस, कंप्लीट, कोहेरेंस, ये सारे 7 C's में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ना हम लेटर को बना सकते हैं। और ये एंगेजिंग वीडियो था, कैसा वीडियो रहा आप बताना। मुझे लगता है कि टुडे आई हैव पुट माय मैक्सिमम एफर्ट्स इन डिलीवरिंग द method of writing a formal letter. That's all about formal letter. The main gist or main theme or structure or body or life. Formal letter is life of all letters. Formal letter is mother of all letters, like cover letter, application for job, और letter of application, तीनों एक ही होते हैं भाई। बिजनेस लेटर्स, कंप्लेन लेटर, ऑफिशियल लेटर, बैंक लेटर, everything's come under the umbrella of formal letters. So that's all about today's lecture. सब्सक्राइब योर ऑन चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उसी बच्चे के साथ शेयर कीजिए जिसको भी पढ़ना है, सीखना है। ये नहीं कि आप 50-60 साल के आदमी जिसने लेटर सीखना है ना और उसके पास भेज दे पापा ये मेरे सर का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दे। प्लीज नो, इट इज ओनली फॉर द लेटर राइटर लर्नर्स, जिनका लर्निंग से जिनका ताल्लुकात है, जिनका रिलेशंस है लेटर राइटिंग से। इट कैन योर ही और शी कैन बी ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, वन कैन बी एन एम्प्लॉय in any multinational companies, so in a bank or in a office or in a school, so they have to write letter every day, and the gist of the day is, the main theme of the day is, be stick to the formality of writing a letter. Thank you very much. Keep on watching your own YouTube channel Principal Sir. Thank you very much.